لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. In the beginning, I would like to extend my deepest gratitude to His Eminence Professor Dr. Nisar Akhtar Sahib, Head of the Department of Islamic Studies at this prestigious university. And I would like to welcome our Honorable Chief Guest and Keynote Speaker of today's conference, highly esteemed scholar of sciences of Hadith, who has been serving Islam and sciences of Hadith, including Asma'ur Rijal and principles of Hadith for several years in the University of Damascus. His Eminence Professor Dr. Muhammad Eid Al-Mansour, Zida Majduhu. فأرحبكم أجمل الترحيب فضيلتنا الدكتور محمد عيد المنصور على أنكم شرفتمونا بقدومكم المبارك في هذه القاعة العظيمة بجامعة إقرأ. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर निसार अख्तर साहब का. सर, थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी मच thankful and indebted to you for organizing this international seminar in which soon we are going to pay heed towards what His Eminence Dr. Muhammad Eid Al-Mansour will say inshallah. So thank you very much. شكرا لإدارة الجامعة وللدكتور نثار أخطر الذي رتب هذا اللقاء مع وجوهكم الطيبة. मैं इस जामिया यूनिवर्सिटी का भी शुक्रगुजार हूँ और ख़ासकर मुफ्ती साहब डॉक्टर निसार अख्तर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी. أريد أن أتدارس مع حضراتكم حول محورين. الأول عن التنمية الأخلاقية. फरमा दें कि मैं दो मौज़ूआत पे आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करूँगा. पहली जो है वो अखलाकियात के हवाले से. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر عن رسالته فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तालीम को ताबीर दिया है कि मैं आया हूँ अखलाक की तकमील के लिए. هو قال في حديث آخر أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ليس العلماء ولا التجار ولا حتى الصحابة بل أحاسنكم أخلاقا. और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे करीब न कोई आलिम होगा, न ताजिर होगा, न कोई और होगा, बल्कि वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे. الشاعر يقول لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج صاحبه بخلاقه. शेख फरमाने एक शेर के साहिब इल्म उस वक्त तक उसका इल्म मुज़य्यन और खूबसूरत नहीं हो सकता जब तक अखलाक उस इल्म की तर्जुमानी ना करे. العلم وحده قد يكون قاتلا. शेख फरमाने के महज मेरा इल्म जो है कभी कभी कातिल साबित होता है. العلم وحده قد يفتك بالناس ونحن نرى ما تفعله القنابل النووية وغيرها بالشعوب. शेख फरमाने के जो मेरा इल्म है बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ फसादात की वजह बनता है. العلم من دون أخلاق كشجرة بلا أوراق. फरमाने के इल्म जो है बग़ैर अखलाक के ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते ना हों और जिसका साया ना हो. الأخلاق هي التي تضبط العلم وترشده إلى طريق النجاح. अखलाक जो है वो इल्म की सही तर्जुमानी करता है और वो यानी सही रहनुमाई की तरफ दावत देता है. العلم والأخلاق أخوان توأمان، فالعلم يطور الأمم والأخلاق يرقي الأمم. और इल्म और अखलाक जो है ये जोड़े भाई हैं. هناك
قصة حدثت تعبر عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى علمه. वहाँ एक वाक़या साबित हुआ था जो इस बात की निशानदेही करता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की। أنتم الآن أصدقاء في الجامعة، قد يتعرض الصديق لخطأ مع صديقه الآخر. आप जैसा कि यहाँ के दोस्त हैं तो कभी कभार एक से कोई ख़ता सरज़द हो जाती है दूसरे के हक़ में। قد يخطئ معه جاره أو شريكه أو رجل في الطريق. कभी कभी कोई गलती सरज़द हो जाती है तुम्हारे किसी दोस्त से या तुम्हारे किसी पड़ोसी से या रास्ते में चलने वाले राहगुज़र से। كيف نتعامل ونصحح هذا الخطأ؟ तो हम कैसे उनके साथ मामला और बर्ताव करें और किस तरह इस गलती की तस्हीह करें। أحد الصحابة الكرام أخطأ خطأ عظيما أمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. शेख फरमा रहे हैं कि एक सहाबी से गलती हुई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। علاج الخطأ كان من خلال 3 أشياء فعلها معه. नाम और उस जो गलती हुई थी सहाबी से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इलाज फरमाया 3 तरीक़ों से। الأمر الأول تروى ولم يعجل عليه ولم يأخذ قرارا في حقه، إنما تروى وتمهل. पहले जो है वो ये कि जल्दबाजी न करें और सुकून और वक़ार से और हिल्म और बुर्दबारी से काम लें। الأمر الثاني دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ليستمع إلى حجته لماذا فعل هذا الأمر هذا الخطأ. और दूसरी वजह ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को बुलाया और उनसे वजह पूछी, बगैर किसी वजह के कुछ नहीं फरमाया। أحيانا يكون الإنسان معه حجة، يعني فعل الخطأ باجتهاد وهو يظن أنه قد أصاب في ذلك. बाज़ औक़ात इंसान से गलती होती है लेकिन उसके नज़दीक उसकी कोई दलील और कोई हुज्जत होती है, कोई वजह होती है, इस वजह से वो गलती करता है। سيدنا عمر كان موجود في المجلس، لم يقتنع بهذا الكلام فأصر على معاقبة الرجل. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस मजलिस में बैठे हुए थे कि एक शख्स ने उनसे बात की। الآن سنصل إلى الطريقة الثالثة من طرق العلاج، تروى وأنصت للرجل، والثالث أنصف. पहला जो है वो बुर्दबारी है, दूसरा تروى أنصت سمع. सुकूत है, खामोश हो जाना है। तीसरा सालिफ أتعبت المترجم، أنا أعتذر منه، ترجم لهم ذلك. نعم، الأول التروع والثاني أنصت الثالث قارن بين حسناته وسيئاته فكانت حسناته أكثر. طيب यानी मुआवजा करते हैं गुनाहों और नेकियों का और उनके जो खूबियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। فسامحه النبي على خطئه. तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमाया उनके नेकियों की वजह से। إذا أخطأت زميلتك معك أو صديقك وأنت شاب، هل تتروى وتسمع إلى حجته وتقارن بين المواقف الجيدة التي وقفها وهذا الموقف الوحيد السيء؟ जब आपका कोई दोस्त या आपका कोई करीबी कोई उनकी से कोई गलती हो जाए तो आप सिर्फ उनकी उस गलती को नहीं देखें और उनकी बुराई को नहीं देखें, उनकी कोई नेकियों को भी देखें, उनकी अच्छाइयों को भी देखें और उन अच्छाइयों को सामने रखकर उस पर फैसला कीजिए, उनको माफ़ कीजिए। ما تظنه أنت خطأ قد يكون هو الصواب. और बाज़ औक़ात हो सकता है कि तुम जिसे गलती समझते हो वो हकीकत में सवाब और सही हो। فتاة كانت تريد أن تسافر في المطار، اشترت بعض البسكويت وتنتظر إقلاع الطائرة. मेरे एक दोस्त है जो मेरे साथ जहाज़ में शरीक थे और उन्होंने वो एक बिस्किट ख़रीदा। جلست تنتظر إقلاع الطائرة تتصفح إحدى المجلات. और वो इस इंतज़ार में थे कि वो जहाज़ उड़े और वो यानी अखबार को पढ़ने लगे। الشاب الذي كان يجلس بجوارها مد يده إلى البسكويت وجعل يأخذ حبة تلو حبة. और मेरे करीब जो قطعة. जवान बैठे हुए थे तो वो बिस्किट أخذت قطعة تلو قطعة. वो बिस्किट खाने लगे थोड़ा। هي تضايقت جدا، لماذا لم يستأذن؟ لماذا لم يقل لو سمحتي أريد أن آخذ؟ और वो इस इंतज़ार में थे कि मैं उनसे कुछ मांगूं और खाना शुरू कर दूं। لكن الشاب كرر العملية 3 مرات دون أن يستأذن. और वो इस इंतज़ार में थे 3 मरतबा उन्होंने ये काम किया बगैर किसी इजाज़त के। هذه الفتاة كادت
أن تضرب وجه هذا الشاب بالمجلة التي بين يديها. كادت أن تضرب الشاب بالمجلة करीब था कि वो بتصرفه. उस मजल्ला को खोल लेता, لأنه لم يستأذن. इसलिए कि उसने मुझसे नहीं पूछा था, वो मजल्ला इनका था. لكن إذاعة الطائرة قالت الذي يريد أن يتوجه يسافر إلى المكان الفلاني يذهب الآن فوراً. तो वो जब किसी दूसरी जगह गए तो फिर फौरन उस जगह से वापस आए. قامت هذه الفتاة وهي تثور من الغضب على الشاب. ما تظنه صواب قد يكون خطأ. तो कभी बसा औकात ये होता है कि इंसान किसी चीज़ को समझ रहा होता है कि वो गलत है लेकिन वो सही भी हो सकती है. لذلك ينبغي علينا أن نتروى في اتخاذ القرارات ضد الآخرين. इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी हम कोई फैसला करें तो वो सोच समझकर सोच विचार करके किया जाए. فتاة كانت تريد أن تسافر في المطار. एक नौजवान लड़की थी, उन्होंने सफर का इरादा किया जहाज में. اشترت علبة بسكويت تأكلها ريثما تحين موعد الطائرة. और उन्होंने बिस्किट का एक डब्बा खरीदा कि जहाज के टेक ऑफ करने से पहले वो इंतजार कर रही थी ताकि बिस्किट खा ले. جعلت تتصفح مجلة وهي تأكل. और वो एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी और कुछ मुताला कर रही थी किताब का और बिस्किट खाती जा रही थी वो खातून. الشاب الذي يجلس بجوارها دون أن يستأذن مد يده إلى البسكويت وأخذ قطعة أو قطعتين. एक बराबर में उस नौजवान लड़की के बराबर में लड़का बैठा, वो भी नौजवान था. उसने बगैर किसी इजाजत के डब्बे में से बिस्किट उठा के खाना शुरू कर दिया. هي تقول في نفسها هذا التصرف غير لائق، لو أنه استأذن لأذنت له. तो उस नौजवान खातून ने सोचा कि कितना गलत इसका बिहेवियर है और ये क्या हरकत कर रहा है, ये पूछ लेता तो ज़्यादा बेहतर था. هو كرر هذه العملية مرتين أو ثلاثة. उसने 2-3 मर्तबा इसी बात को रिपीट किया, यानी बिस्किट उठा के बगैर इजाजत खाता रहा. كادت هذه الفتاة أن تضرب وجه الشاب بالمجلة. उस नौजवान लड़की को इतना गुस्सा आया कि करीब था कि वो उसको थप्पड़ मार देती. لكن إذاعة المطار طلبت من المغادرين إلى المكان الذي تذهب إليه أن يذهبوا مباشرة. लेकिन अचानक एयरपोर्ट में जो अनाउंसमेंट्स होती हैं तो उसमें ऐलान हुआ कि बस फौरन जो है वो बोर्डिंग यानी बिल्कुल जहाज की तरफ जो है ऑन बोर्ड चले जाएं सब. هي ذهبت إلى الطائرة لكنها كانت غاضبة للغاية. तो वो फौरन उठ करके कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए, वो एयरपोर्ट फौरन यानी जहाज की तरफ चली गई एयरपोर्ट से और जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो खातून. المفاجأة أنها لما جلست في مكانها في الطائرة وفتحت حقيبتها وجدت علبة البسكويت في الحقيبة وهي كانت تأكل من بسكويت الشاب. अल्लाह. लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठ गई तो उसने जब अपने बैग को खोला तो उसके लिए सरप्राइज ये था कि वो बिस्किट का डब्बा जिससे वो खा रही थी वो उस नौजवान का था और उसके बिस्किट का पूरा पैकेट ऐसे के ऐसे ही सही और सालिम उसके अपने बैग में था. ما तظنه أنت صواب قد يكون خطأ. कह रहे ऐसा होता है कि जिस चीज को हम बसा होता ये समझते हैं कि हम जो है हक पर हैं, हम सही हैं, लेकिन कई मौका ऐसा होता है कि हकीकत इसके उलट होती है. लिहाजा आराम से सोच समझ के काम करना चाहिए. العلم من دون أخلاق لا قيمة له. अगर इल्म आपके पास है, आप बहुत एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन अगर आपके पास मोरल नहीं है, अखलाक नहीं है, तो ये बहुत ही बुरी बात है. الجانب الثاني الذي أريد أن أختصر الكلام عنه. अब मैं अपने मौजू के एक दूसरे रुख पर आता हूँ, दूसरी जानिब आता हूँ. كل واحد منا يتألف من 3 أشياء: جسم وعقل وروح. हम सब 3 चीजों से बने हैं. हमारे पास जिस्म है, अकल है और रूह है. ये 3 चीजें हर इंसान में. الجسم غذاؤه الطعام وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. जिस्म की जो ग़िज़ा है वो खाना है, जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कि तुम खाओ और पियो लेकिन खाने पीने में इसराफ और ज़्यादती ना करो. العقل له غذاؤه
وهو ما تأخذونه في هذه الجامعة العامرة من العلم والمطالعة. और अकल की ग़िज़ा वो है जो आप सब स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी से हासिल कर रहे हैं और वो आपकी तालीम है। أما غذاء الروح فهذا نحن مقصرون في حقه بشكل كبير. अब रह गई रूह की ग़िज़ा, तो इसमें हम सब बहुत ज़्यादा कोताही करने वाले हैं। الروح هي من تحمل الجسم، فأنت عند محبتك للجامعة تحمل هذا الجسم لتصل إليها. रूह जो होती है वही इंसान को उसके जिस्म को उठाए हुए होती है, क्योंकि आप अपनी रूह के साथ, ठीक है ना, आप ये चाहते हैं कि आप तालीम हासिल करें, इसीलिए आपकी रूह ने आपको उभारा और आपके जिस्म को यूनिवर्सिटी में ले आई। الله تعالى وصف المنافقين بقوله إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में फरमाया कि जब ये नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इंतहाई सुस्त रवि के साथ मरे दिल से खड़े होते हैं। الروح أصبحت ضعيفة فلم تستطع أن تحمل الجسد إلى العبادة. तो ऐसे लोगों की जो रूह है वो कमजोर होती है, इसीलिए वो रूह उन्हें उनके जिस्म को उठा नहीं रही होती कि वो फौरन नमाज की तरफ चले जाएं। تعالوا بنا لنغذي أرواحنا كما نغذي أجسادنا وعقولنا. हम आप सबको ये मैसेज देते हैं कि हम सबको भी ये चाहिए कि हम अपनी रूह को अच्छे कामों पर उभारें और उसको सही अपने जिस्म को ग़िज़ा फराहम करें। غذاء الروح بتلاوة القرآن بالأذكار بالمحافظة على العبادة. और रूह की जो ग़िज़ा है वो अल्लाह पाक के कुरान करीम, अल्लाह के कलाम की तिलावत है, और वो ज़िक्र व अस्कार जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए उनको पढ़ना, ये तमाम काम हमारे रूह की ग़िज़ा हैं। في حديث قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स है कि जो अल्लाह का जिक्र बड़े शौक से कर रहा होता है, और एक दूसरा बंदा ऐसा है जो अल्लाह का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करता। तो फरमाया इन दोनों की मिसाल ऐसे है कि जो जिक्रुल्लाह करने वाला है वो एक जिंदा शख्स की तरह है, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता गोया कि वो एक मुर्दार है, मरा हुआ शख्स है। تعالوا بنا لنعمل على غذاء الروح لا سيما في فترة الشباب. और याद रखें कि अपने इस रूह की ग़िज़ा को कभी भी ना छोड़ना, खास तौर पर कि जब आप अपनी इस नौजवानी के आलम में हैं। أرواحنا متعطشة وبحاجة إلى الغذاء. हमारी जो रूहें हैं वो इंतहाई प्यासी हैं और उन्हें अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है। أكرر سعادتي بهذا اللقاء وأشكر الدكتور نثار أن أتاح لي هذه الفرصة للقاء مع حضراتكم. मैं दोबारा डॉक्टर निसार अख्तर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुलाकात के लिए हमारे लिए असबाब पैदा किए और वही इस मुलाकात का ज़रिया बने। سأسعد بكم أيضا في جامعات دمشق عندما تزورنا في الجامعة هناك. फरमा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप सब जब हमारी दमस्कस यूनिवर्सिटी में आप आएंगे और हम अगर आपको वहाँ देखेंगे तो हम आपको ज़रूर वेलकम करेंगे। وهي دعوة لكم جميعا لزيارتنا في دمشق. और मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप सब भी सीरिया को ज़रूर बिलखुसूस विजिट करें। شكرا लकुम जमीआन फी अमान अल्लाह. आप सबका शुक्रिया, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में आप रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. شيخنا الفاضل أهلا أنت بخير. اسمي عبد المصطفى. أدرس علم النفس في هذه الجامعة. جميل. سؤالي لك، لماذا ورد في حديث جبريل عليه السلام صلي الصلاة أنك تراه الله تعالى، هل هو الممكن لزيارة الله تعالى؟ السؤال الثاني वाहिद। अच्छा, इन्होंने माशाल्लाह ये आप ही की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इकरा यूनिवर्सिटी में जो है वो साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, और माशाल्लाह क्योंकि इन्होंने जैसे अरबिक सीखी है तो अभी मैं सवाल किया है कि हदीस जिब्रील एक बहुत ही मशहूर हदीस है।
يسأل الأخ عبد المصطفى وأنا أشكره لا ما ترجمته سؤال. وأنا أشكره على سؤاله. حتى نفهم السؤال سيترجم الأخ عرفان السؤال ثم يترجم الجواب. तो इन्होंने ये सवाल ये किया है कि हदीस जिब्रील में, जो कि बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो इस हदीस के बारे में आप क्या फरमाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो? أشكر الأخ عبد المصطفى سؤاله، والجواب عنه في الإسلام هناك 3 مراتب: الإسلام ثم يرتقي إلى الإيمان ثم يرتقي إلى الإحسان. तो फरमा रहे हैं कि इसके 3 मर्तबे हैं, एक ईमान है और दूसरा जो है वो एक इस्लाम है और एक इहसान है। 3 मरातिब है इसके। أعلى مراتب الإسلام الإحسان أن تعبد الله، تصلي كأنك ترى، تتخيل كأنك تقف بين يديه. और उनमें आला तरीन दर्जा ये है इस्लाम का कि तुम इस तरह तसव्वुर करो कि गोया कि तुम जब अल्लाह की इबादत कर रहे हो, जब नमाज में हो, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहे हो। نحن نقول في الصلاة إياك نعبد، هذه الكاف في اللغة العربية كاف الخطاب لمن هو أمامنا ونخاطبه. जब हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु, तो ये जो इय्याका की काफ है, ये अरबिक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खिताब कहा जाता है, यानी फॉर सेकंड पर्सन वी यूज दिस प्रोनाउन। तो ये जो अरबिक की प्रोनाउन है, इसको हम सामने वाले के लिए यूज करते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। نحن لا نعبد غائبا، إنما نعبد من نراه نستشعر أن أمامه. फरमाने कि ये इय्याका की काफ बता रही है कि हम किसी गायब खुदा की इबादत नहीं कर रहे होते, बल्कि गोया कि हम रब्बुल आलमीन को हाजिर पाते हैं और उसकी इबादत कर रहे होते हैं। هذا الشعور يجعلنا نتقن صلاتنا وعبادتنا. ये फीलिंग जब होगी तो इसी तरह हम अच्छे तरीके से अपनी नमाज और अपनी इबादत को कंप्लीट कर सकेंगे। أي عامل أو حتى طالب أو صانع لو استشعر هذا لأتقن عمله وصناعته. कोई भी काम करने वाला या मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, भले किसी की फर्म हो, कंपनी हो, तो अगर वो अच्छे तरीके से किसी भी प्रॉपर वे में काम को करता है, तो जब ही उसका काम दुरुस्त तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा करता है। نريد أن نرتقي فوق البشر لنكون مثل الملائكة في عبادتها لله. हमें चाहिए कि हम इंसान तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जब इबादत करें तो इस बशरियत से बुलंदी अख्तियार करें और हम मलाइका और फरिश्तों की सफ़ों में शामिल हो जाएं, ऐसे अल्लाह की इबादत करें। إذا عجزنا عن ذلك فتتمة الحديث يقول: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نستشعر أن الله يراقبنا. और इस हदीस को अगर हम कंप्लीटली इसको स्टडी करें तो इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अल्फाज हैं कि ए बंदे, अगर तुम ऐसा ना कर सको कि तुम ये तसव्वुर कर रहे हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम ये तो तसव्वुर कर लो कि वो रब तुम्हें हर वक्त देख रहा है। السؤال الثاني. सेकंड क्वेश्चन प्लीज। ما هو الطريق لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم؟ दूसरा सवाल इन्होंने किया कि हम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखना चाहें तो उसका क्या वजीफा या तरीक़ेकार है कि हमें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो ख्वाब में। في المساء اجلب سمكا وأكثر الملح وكل ثم نم دون أن تشرب ماء. फरमाया कि शाम के वक्त में तुम मछली लो और मछली पर खूब नमक डालो और मछली को खा के सो जाओ और पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। لا تشرب ماء أبدا. ماذا سوف ترى في المنام؟ कह रहे हैं अगर तुम बिल्कुल पानी नहीं पियोगे और मछली सा खा के सो गए, नमक भी बहुत ज्यादा हो, सॉल्टी फिश, तो कह रहे हैं उसके बाद तुम्हें ख्वाब में क्या नजर आएगा, मुझे ये बताओ। ستغرق في البحار وترى نفسك تشرب المياه من البراد والحنفية. कह रहे हैं कि फिर तुम ख्वाब में यही देखोगे कि तुम पानी में डूबे हो और कभी नल से पानी पी रहे हो, कभी नहरों में पानी पी रहे हो, ऐसे ख्वाब तुम्हें नजर आएंगे। عندما يكون شوقنا للنبي صلى الله عليه وسلم كشوقنا للماء نرى. अगर
हमारे दिल में जिस तरह इस तरह मछली खा के पानी पीने की तलब वाला शौक होगा, और ऐसा ही शौक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए होगा, और हमारा दिल तड़प रहा होगा कि हमें दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो फिर तुम्हें जरूर ये ज़ियारत हासिल हो जाएगी। أكرر القول I am very happy to meet you. نلتقي مرة ثانية إن شاء الله. माशाअल्लाह। फी सवाल कोई क्वेश्चन है तो कर लें प्लीज जी। الله يجزيك خير يا دكتور نثار. صحيفتكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. My name is Aksa. I am a student of Iqra University. My question is हल राई नबी क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यानी हर تمام. नबी सल्लल्लाहु did prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम see Allah? क्या फहीम तुमसे? لغتك العربية جميلة. Your language is very beautiful. Oh, thank you. You are talking in Arabic language, so he is very happy. جزاك Pronunciation is very well. سؤال هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ نعم. نعم. هذا ما يقوله جمهور العلماء وقرره من الصحابة عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في رحلة الإسراء والمعراج. इस उम्मत के जमहूर यानी मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स की यही राय है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया है, और उनमें सरफ़हरिस्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की राय है। خلق الله في عينيه قوة إبصار لرؤية الأشياء التي هي من دون مكان ولا زمان فرآه فوق السماوات. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में वो ताकत वदीअत फरमा दी थी, वो ताकत रख दी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी चीजों को भी देख लिया करते कि जो एक आम इंसानी आंख नहीं देख सकती, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों के ऊपर तक की अशिया को देख लिया करते थे। كانت خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم الخلق على الله. और ये खुसूसियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भी अता फरमाई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके महबूब नबी हैं। توفيق إن شاء الله. कोई और क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, वरना फिर खत्म करें सेशन को प्लीज। I am happy to meet you وأطلب منكم أن تدعوا لي دائما. मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।